Class 12 we'll study about surface chemistry, and in that we'll study colloidal states. But before that we have to focus on the, because this is there in your course, Thomas Graham's point. Thomas Graham basically studied the diffusion of solution through animal membranes. Suppose this is the animal membranes, and the solution diffusions, different diffusions of solution through this particular membranes, and this particular this solution, a solution hai, solution must be containing certain substances. So he took sugar in that, or urea, or sodium chloride, and you know these things are dissolved in the water, and they can easily pass through the membranes. ठीक है, ये थोड़ा देखा पहले, जैसे ना सोल्यूशन देख रहे थे और एक एनिमल membranes हमने यूज़ करा, and he want to see that how much the particles can move through it. So first solution उन्हें जो दिए वो that was of sugar solution, or of urea, or NaCl, or second solution he took it of your glue, your gum, ठीक है, अरेबिक गम या गम अरेबिक. सो दीज थिंग्स ही टुक. तो ये जो सोल्यूशंस थे इनके, ये बेसिकली दीज आर द सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो दीज पर्टिकुलर सोल्यूशंस कैन ईजली पास थ्रू द एनिमल membranes, but these particular solutions when they were made, so they are not easily passing through the animal membranes. So he come across with two types of terms, or two types of categories for the solutions. और एक उनने, और बेसिकली वो solutions different solutes से बने हुए थे. So he come across with two things. One was your crystalloids and other was your colloids. ठीक है. अब जैसे ये गम होता है जो आप यूज़ करते हो ना, वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है. तो ये बेसिकली ये जो दो तरीके के जो आपके पास सब्सटेंसेस आए उसने क्लासीफाइड करा, वी हैव टू फोकस ऑन दैट. वी बेसिकली ग्राम वाज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैज़ एक्सप्लेन दीज टर्म्स. ठीक है. ना colloidals and the crystalloids, they were the broad categories, and they were basically we can study with their parts of ये size of the particles. तो इनको आप differentiation सबसे best होता है कि you can easily look through them through their particles. If their particles are small, then what will happen? If the particles are very large, then what will happen? So basically in this case of crystalloid, the particles of the solutes, or the particles that were present in the solutions were very small, so that's why they could pass through the animal membranes. But the particles that were present in the colloidal solutions were bigger comparison to crystalloid, so they could not pass through the membranes, एनिमल membrane. एक ये मेन डिफरेंस था इनमें, लेकिन बेसिकली इनका काफ़ी डिफरेंस है जो विल स्टडी अपॉन इट, बिकॉज समटाइम्स डिफरेंस इज आस. पहले तो आपने क्या देखा, साइज़ को देखा, साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स. तो बेसिकली जो यहाँ पार्टिकल साइज़ थे, दे वर बिग और दे वर लार्ज. ठीक है. तो और कंपैरिजन टू सॉरी, दे वर स्मॉल, और इसमें क्या थे, लार्ज थे. सो इफ़ दे वर स्मॉल, तो उनका साइज़ कितना हो सकता है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास है ना थ्री कैटेगरीज़ के आते हैं, क्योंकि हमें इसको पढ़ने से वी हैव टू फोकस ऑन अदर पार्ट ऑल्सो. विल डिस्कस दैट, देन आई डिफ्रेंशिएट दीज टू पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड. Now we come across for more new things in that, and then only we can focus. We come across a system, that is the dispersion system. अब ये एक डिस्पर्सन सिस्टम बनता कैसे था. इट कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स. वन वॉज योर डिस्पर्स फेज्ड, एंड वन वॉज योर डिस्पर्जन मीडियम. Right, so we were coming across these two things, disperse phase and dispersion mediums. So what were they? That is very important. अब suppose करो आपने एक solution बनाया, एक solution में दो चीज़ें रही होंगी. अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि सॉल्वेंट वगैरह ये सब, ऐसा कुछ नहीं है. तो बेसिकली जो आपका सब्सटेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी से, जो इनसे कंबाइंड हुआ वो डिस्पर्स सिस्टम हुआ. अब डिस्पर्स फेज क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल इज़ द डिस्पर्स फेज, एंड द डिस्पर्स मीडियम इज़ द मीडियम इन विच दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. सपोज करो ये एक हमारा डिस्पर्जन सिस्टम है.
ठीक है। इसमें कोई मीडियम होगा, कुछ भी हो सकता है, शायद पानी में बना हो, चाहे दूध में बना हो, किसी में हुआ, तो जो वो वाला पार्ट जो पोर्शन रहा वो आपका क्या था, डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो पार्टिकल्स जो उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो क्या थे आपके, डिस्पर्स फेज। ये चीज़ है, और ऑल टुगेदर दे फॉर्म अ dispersion system. So you are getting my point. So this particular system, now you please make this thing very clear. This disperse phase, it's not necessary this will be solid, it can be a liquid, it can be a solid, it can be a gas. That is really, now it's a bright or broader way of explaining it. So you have to focus on that कि disperse phase जो है वो आपका किसी भी point में हो सकता है. It can be any state of matter, even the dispersed medium can be also in any state of matter, so you have to focus. So on that basis of the size of the particles, the dispersion system was divided into 3 parts. Now we'll focus on these 3 categories or 3 types of different you can say on size of the particles, the dispersion system. The first one is true solution. Now you the true solution, then you are normally seeing the NaCl solution, and नमक का आप solution use करते हो, so sugar solution, urea solution, these are coming in the true solutions. Now what is the size of the particles? The size of the particle is less than 1 nanometer. This is the case. So the particles are very small. They are, when you are making the homogeneous solution of NaCl, so they are homogeneous in nature. Because of it you can see that you cannot identify where is the salt and where is the your solvent part. Particles are always invisible in it. आप कभी ढूंढ पाते हो नमक के पानी में कि NaCl का है, पानी क्या है. Appearance, if you talk about, they are always transparent in nature, and they can pass through ordinary filter paper. This is the case. Then particles do not settle down. This is the point. Now when you focus on the colloidal particles, then you have seen the colloidal solutions. Then the particles is about 1 nanometer between to 1000 nanometers. Their size is this much. They are heterogeneous. And you cannot, they are visible under ultra microscope. Normal microscope पे आप देखोगे तो दिखेंगे नहीं. So they are visible only in ultra microscope. Next is they can pass through the ordinary filter paper. ऑर्डनरी फिल्टर, आपने दूध देखा है घर पर? दूध की पार्टिकल्स को आप अपने नेकेड आई से देख सकते, नहीं देख सकते. इट इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन एंड इट इज़ ईजिली पास थ्रू द ऑर्डनरी फिल्टर पेपर. बट अगर आप एनिमल मेम्ब्रेन्स के थ्रू इन्हें देखेंगे तो दे विल नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन्स, राइट. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. देन colloidal particles do not settle down. आपने मिल्क को देखा है कभी? आपने देखा मिल्क अपने आप उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं? नहीं. तो दे नेवर settle down in ordinary conditions or under gravity, but under high speeds of centrifugations वगैरह में तब ये particles settle down हो जाते हैं. तो they will colloidal particles do not settle down under gravity. लेकिन under centrifugation, high speed centrifugation में ये सेटल डाउन हो जाते हैं. सेटल डाउन, ठीक है. Now these things they are generally transparent in nature and sometimes they are translucent also, ठीक है. This thing. So then you focus on the suspension part. Suspension, again the particles are greater than 1000 nanometers, so they are big particles. Heterogeneous ये भी होते हैं, ठीक है.
ट्रांसपेरेंट नहीं होते, एपिक्यू होते हैं, आप इनसे आर पार नहीं देख सकते हैं। दे डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो डू नॉट पास थ्रू filter paper, right? Particles settled on standing, particles settle on standing, right? And not only the ordinary filter paper, जो animal membranes होती है उसके थ्रू भी ये पास नहीं हो सकते ये particles. दिस थिंग यू आर देयर, और देर बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि व्हेन आई एक्सप्लेन यू देन ओनली यू आर विल बी easily understand what are Tyndall effect and these things. We are not discussing here, we'll talk about later on. Now let's focus on the systems once again in the disperse on the basis of disperse phase. देखो definition ज़रूर कर लेना disperse phase और dispersion medium की, because these are very important. Now you have various focus upon that. Now let's focus on one more thing. अब इसे डिस्पर्स्ड आपका फेज़ है, मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर्स आप यूज़ कर सकते हो। डिस्पर्जन जो आपका मीडियम है, ये भी पहले हमारा मीडियम, आप हमेशा सोचो कि आपने जैसे आपने वाटर ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वाटर ही नहीं है, कोई भी लिक्विड्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमारा डिस्पर्स फेज़ है, हमने सॉलिड लिया, डिस्पर्स मीडियम भी हमने सॉलिड लिया, तो जो हमारा सिस्टम बना है ना, जो हमारा डिस्पर्जन सिस्टम बना, दैट विल बी व्हाट, सॉलिड सॉल्ट। जैसे कि आप यूज़ करते हो कुछ कुछ आपके पास हैं, जेम्स हैं और रूबी ग्लास हैं, ये सब इसी में आते हैं। मैंने थोड़ा लिखा है, मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़े बहुत बता रही हूँ आपको। नाउ सपोज आई टेक अ डिस्पर्स फेज एज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम एज लिक्विड, तो आपका ये जो सोल बनेगा, जैसे आपने सपोज करो गोल्ड लिया, ठीक है, गोल्ड सॉल हो गया, एक दो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल, ठीक है, ठीक। नाउ सपोज आई टुक सॉलिड अगेन एंड सॉलिड हो गया, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस का ले लेते हैं, तो इसमें क्योंकि गैस का केस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोसॉल ऑफ सॉलिड्स गैस, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी एरोसॉल ऑफ सॉलिड गैस। जैसे कि स्मोक होता है, डस्ट होता है, ये चीज़ें आपके पास, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, स्मोक है, डस्ट है, देयर आर अदर एग्जांपल्स, आई विल शो यू फ्रॉम द बुक्स। नाउ यू कैन सी दिस इज देयर, सॉलिड 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 गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड। याद रखना गैस गैस सिनेरियो नहीं होता है, गैस गैस का सीन नहीं होता है, तो गैस गैस का कोई एग्जांपल मत बना लेना, ठीक है। सो देयर इज़ नो सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ गैस इन गैस, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू फोकस। नाउ we'll focus these terms will be coming across in your course. डिस्पर्जन मीडियम वाटर, अभी आपने देखा ना, डिस्पर्जन मीडियम यू कैन यूज़ एज अ सॉलिड, यू कैन यूज़ एज अ लिक्विड, यू कैन यूज़ एज अ गैस, नो इश्यूज़ ऑन दैट। तीनों चीज़ें हो सकती हैं आपकी, सॉलिड भी आप यूज़ कर सकते हैं, गैस भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज़। लेकिन सपोज़ करो अगर लिक्विड में अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप क्या लोगे, जैसे हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड इज़ यूज एज वाटर। सो अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम किसका है, वाटर का है, तो जो सॉल बन के आएगा वो हाइड्रोसॉल होगा। इफ़ द डिस्पर्जन मीडियम इज़ वाटर, क्या हो गया, कौन सा स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, ठीक है। एरिसॉल इज़ रिलेटेड टू योर एयर, ये कौन सा स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट। एल्कोसॉल मीन्स एल्कोहल इफ़ यू आर यूजिंग अ डिस्पर्जन, ये भी क्या है आपका, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। बेंजोल तो सॉल्स, ये हो गया आपका बेंजीन, इफ़ यू आर यूजिंग एज बेंजीन as your dispersion medium, this is also a liquid condition. So these things are there. If you focus on the classification on the basis of nature of interaction between disperse phase and dispersion medium, so there are two types, lyophilic salts and lyophobic salts. Now philic is always related to loving something, है ना, so they are solvent loving, or they are you can say liquid loving or solvent loving. This thing you have to meet in. Philic is always means loving of something. Lyo लग गया है word, तो it's related to your solvent, so solvent loving. So they have a strong, these substances have a strong affinity towards liquids
It's not only the liquid is you are always taking water, but any of the liquid, and they readily forms colloidal dispersions with them. These substances basically mix with the suitable, you can say, suitable dispersion medium and forms the colloidal solutions, right? So these are this thing lyophilic colloids, or they are also known as you can call them lyophilic salts भी कहते हैं आप इसको, lyophilic colloids भी कहते हैं, and you can also call them as intrinsic colloids. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो सॉल्वेंट में बहुत ईजिली अटैच्ड हो जाता है और कोलाइडल सोल्यूशन बना लेता है. जैसे आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल्स आप लिखिए. एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन आपको मालूम है ना, एग में होता है जो वाइट वाला पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, आराम से सॉल्वेंट के साथ मिलके और आपका लायोफिलिक कोलाइड्स बना लेता है. They are quite stable and they do not get precipitated. This thing you have to keep it in mind. And they themselves use as a self stabilized होते हैं, and they do not require any stabilizer. देखो नॉर्मली आपने अपनी जो कोर्स में या अपनी डे टू डे लाइफ में मेडिसिन वगैरह दी देखी, वो सब कोलाइडल सोल्यूशन है. उसमें क्या होता है, तुम देखते हो हम कुछ ना कुछ स्टेबलाइजर्स डालते हैं कि वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए. ठीक है, इसमें जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, देयर इज़ नो नीड टू ऐड दैट टाइप ऑफ स्टेबलाइजर्स कि वो उसको ज़्यादा टाइम पीरियड पर आप रखें. वो सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं, एंड देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनी स्टेबलाइजिंग एजेंट्स टू देम टू प्रिवेंट देम. मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए, पीपीटी अलग रह जाए. इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल सॉल्ट्स भी इन्हें हम कहते हैं. ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया है, दिस इज़ रिवर्सिबल सॉल्ट्स. सॉल्ट्स वर्ड्स हम हमेशा कोलाइडल सोल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं. यू हैव टू मेक इट वेरी डिस्टिंग कि जो सॉल्ट्स जो बनते हैं वो आपके ज़्यादातर कोलाइडल सोल्यूशंस में ही आप फोकस करेंगे. ठीक है, दे आर हाईली हाइड्रेटेड होते हैं. इसमें वाटर मतलब जो भी आपका लिक्विड पार्ट होता है वो रहता ही रहता है. वो कोagulate नहीं होता है. आपने देखा कोagulation का मतलब समझना, आपका ब्लड निकलता है और फिर वो अपने आप जम जाता है, एयर के कांटेक्ट में आता है. तो इसमें ईजिली कोagulation जैसी चीज़ नहीं होती है. ठीक है, विस्कोसिटी इज़ मच हायर इन देम, एंड सरफेस टेंशन जो होता है वो इनका लोअर होता है देन दिस थिंग योर डिस्पर्जन मीडियम. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. और इनके पार्टिकल्स भी, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं इनके स्मॉल होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा पार्टिकल्स ही लेंगे. इसमें सॉल्वेंट पार्ट पोर्शन ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान लेके चलिएगा. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू मेक इट इन पॉइंट. एंड दे डू नॉट, दीज पार्टिकल्स डू नॉट माइग्रेट. क्योंकि भाई पार्टिकल सॉल्व बना रहे हो तो इसमें तुमने ज़रूर, जाहिर सी बात है भाई, ये एल्ब्यूमिन किसकी तरह काम कर रहा है, ये पार्टिकल्स की तरह. सॉल्वेंट आपका एक डिस्पर्स मीडियम की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ ये डिस्पर्स फेज़ हुआ ना, ये डिस्पर्स फेज़ है, डिस्पर्स मीडियम है. तो डिस्पर्स पार्टिकल्स जो हैं ये माइग्रेट इन आइदर डायरेक्शन, और माइग्रेट नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं. ये माइग्रेशन होता है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दिस थिंग यू हैव टू फोकस ऑन लायोफिलिक. Now we focus on the lyophilic salts, the lyophobic salts. Lyophobic salts या lyophobic colloids कह सकते हैं, lyophobic salts कह सकते हैं, extrinsic colloids कह सकते हैं, irreversible salts कह सकते हैं. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, they are not at all loving the solvent, they are solvent hating. ठीक है, ये जो होते हैं ये आपके लिक्विड्स को प्यार नहीं करते. दे डू नॉट, दीज सब्सटेंसेज डू नॉट हैव, और द सब्सटेंस बेसिकली नॉट दीज सब्सटेंसेज नहीं, जो सब्सटेंस आप इसमें यूज़ करोगे दैट इज़, दे डू नॉट हैव अ गुड एफिनिटी टुवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम. वही वाली बात है ना कि आपके पास यहाँ डिस्पर्स फेज़ है और यहाँ आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है. ठीक है, तो ये जो डिस्पर्स फेज़ है ये जो होता है ये वाटर हीटिंग होता है. तो जो भी आप सॉल्वेंट या यूज़ करोगे वो इसमें, वो इसको बिल्कुल भी
मतलब कह सकते हो ये जो डिस्पर्स फेज है इसको अडेप्ट नहीं करता है. दे डू नॉट हैव, दे के नॉट, दे डोंट, दे आर नॉट, डू नॉट readily pass into the solid states, and when they are mixed in the mediums, so that you have to keep it in mind. तो इसके लिए इनको लायोफोबिक्स जो आपके सॉल्व्स होते हैं इनको बनाने के लिए भी आपको स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती है, बहुत ईजिली नहीं बनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल्ट बनाने हैं आपको, प्लैटिनम सॉल्ट बनाना है, सो दे आर नॉट एट ऑल दिस थिंग, है ना. तो ये बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, ठीक है. डिस्पर्स फेज और गोल्ड सॉल्ट्स का केस आप देखोगे, दे आर नॉट एट ऑल फॉर्मिंग दिस थिंग. और ये क्या हो जाता है, ये जब ये सॉल्ट्स आप बनाते हो लायोफोबिक सॉल्ट्स, ये ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते. लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल थे और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते. दे ईजली प्रेसिपिटेटेड ऑल्सो. So they are easily precipitated also, and they need stabilizing agents also, because they get precipitated. तो precipitation ना हो इसीलिए हमें उसमें stabilizing agents की ज़रूरत होती है. So they are easily precipitated as you add a small amount of electrolyte. अगर आप इसमें जो भी लायोफोबिक जो आपके सॉल्ट्स हैं इसमें अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे स्मॉल अमाउंट में, तो ये क्या हो जाता है, दे गेट प्रेसिपिटेटेड. दिस थिंग यू हैव टू, इसीलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं. और इसीलिए आपको क्या है, ये प्रेसिपिटेशन ना हो, यू हैव टू ऐड इन दिस स्टेबलाइजिंग एजेंट. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सो दीज टू पोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट इग्नोर. इनकी डिफरेंसेस डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं. फाइन.